Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. Today we are starting a new chapter that will be a fifth chapter and it is Boolean algebra. Well, it is a very important chapter as per your exam point of view. Along with that, this chapter is also important if we talk about the basic functionality of computer system. In this chapter, we have to majorly focus on one topic, that is logic gates, and the most important thing is that this chapter will be of one part only. It means we will finish this chapter in one small video of 30 or you can say 25 minutes only. So now let's get started. So let's see what we have to discuss. First of all, in this chapter we have to discuss these few things. First I will teach you like what are logic gates, then types of logic gates, and then these few terms. So these are some logic gates. Now let's start. So as you can see, I have told you earlier this so many times that in whichever page you will get this RW thing, you have to note down that page in your notebook. So if you have your notebook with you, it means you have to do the writing work today. And if in case you don't have the notebook, no problems, just take a screenshot of this, and whenever you will get your notebooks back from the school, just start doing this work. Well, let's understand what is Boolean algebra and why it was invented initially. So first, discuss about this term Boolean algebra and who invented it. Well, this Boolean algebra is a mathematical thing. Fine, is a part of algebra. In mathematics, we have a section which is termed as algebra. Fine, so it is a part of that mathematics portion only. Suppose maths wala part hai, that part is termed as algebra. Fine, there was a mathematician called George Boole. Fine, George Boole, and in his book of Mathematical Analysis of Logic 1847, he introduced this concept of Boolean algebra. Fine, and set forth more fully in his An Investigation of Laws of Thought. Fine, then he launched one more book, that was An Investigation of the Laws of Thought 1854, in which he you can say that explained more about this term Boolean algebra. Fine, so this name was generally you can say taken from his surname only, and initially the concepts of Boolean algebra were introduced by George Boole, or you can say that the father of Boolean algebra is George Boole. Now let's read these three paragraphs and then understand this concept. In mathematics and mathematical logic, Boolean algebra is a branch of algebra in which the values of the variables are truth values, that is true and false. Usually true is denoted by 1 and false is denoted by 0 respectively. Fine, so this Boolean algebra is a language through which our computers or machines or mathematical logic will differentiate between true values or false values. True means certain conditions are true and false means certain conditions are not true, it means these are false. Fine, and for representing this true value we use digit 1, and for representing these false values we use digit 0. And as you all can see that these are two binary digits. These are two binary digits. This 1 and 0, these are two binary digits. Hence, it is a very important part for our computers. Fine, that's why it becomes a very important part for our computers. Now, let's read this further. Boolean algebra was introduced by George Boole in his first book, The Mathematical Analysis of Logic 1847, and set forth more fully in his An Investigation of the Laws of Thoughts 1854. Fine, so it was initially you can say introduced by George Boole. You have to learn this name along with this book name also. Fine, and initially he framed these concepts in his book, or the first edition of his book, The Mathematical Analysis of Logic, where he discussed a few things related to the Boolean algebra. Then Boolean algebra has made fundamental in the development of digital electronics. Fine, it is very important whenever we talk about the electronics. This part of mathematics or this part of algebra is generally used in all the electronic circuit boards. Well, whenever you see a circuit board, you might have seen that there are so many diagrams drawn like this or this. Fine, so these are some kind of logic gates that we do have in this chapter, that we have to discuss in these chapters. And along with that, you might have seen that in so many circuit boards we have some printed numbers, like zeros and ones are printed somewhere, even in our switchboards also. Fine, so these values do have a meaning now, and is provided for the modern programming languages. Fine, so this Boolean algebra is generally used in digital electronics as well as in programming languages. It is used in set theory and statistics.
If we talk about mathematics, then this Boolean algebra is used in set theory and statistics. Well, this portion of mathematics where you will learn this Boolean algebra, it is very rare for all those who are not taking computers in their further studies. Fine, but all those who will learn physics and computers after class 12th, either in graduation or in BTech, they will most probably will learn this portion of Boolean algebra in detail also. And if you talk about computers, well, for your class 8 syllabus, you only have to understand this term, and then next term is logic gates. Fine, so you only have to understand two things, that is logic gates and Boolean algebra. What are these terms, and just the introduction of this, nothing extra you have to read. Fine, तो चलो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आखिर ये Boolean algebra कंप्यूटर्स में क्यों इंपॉर्टेंट है. Well, you might have seen that whenever we work with our computer, some electric currents are generated. Fine, whenever we work with our computer, some electric signals are generated. Fine, if an electric signal is generated, it means the value will be 1, but if it is not generated, in that case the value will be 0. Or if the machine is in on state, the value will be 1. If the machine is in off state, in that case the value will be 0. Fine, similarly, so many operations are generally managed by these states of machines or electric current, that is 0 and 1. Fine, so by using Boolean algebra, we can combine these multiple inputs, and then on that basis we can perform a particular operation. For example, let's suppose you are designing a computer. एक कंप्यूटर बना रहे हैं हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बड़े ही सिंपल से कंसेप्ट पे वर्क कर रहा है. भाई मैंने वहाँ पे एक शॉर्टकट की मान लो सेट करी है. मैंने कहा कि अगर यूज़र ने कंट्रोल प्रेस करा है और अगर साथ में सी प्रेस करा है, यानी अगर उसने दो चीज़ें एक साथ करी हैं, कंट्रोल प्रेस करा, अगर यानी कंट्रोल वाली कंडीशन ट्रू हो जाए और सी वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, दोनों की दोनों कंडीशंस एक साथ अगर ट्रू होती हैं, तो उस कंडीशन में मुझे कोई ऑपरेशन करना है और वो ऑपरेशन माइट भी यहाँ पर कॉपी का होगा. फाइन, तो अगर मुझे इस टाइप के कोई लॉजिक्स को चेक करना है कि यूज़र कौन कौन सी की को प्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहाँ पे कीज़ एक साथ प्रेस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इस टाइप वाले लॉजिक्स को फ्रेम करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक बूलियन अलजेब्रा के कंसेप्ट को. बिकॉज जैसे ही हम लोग किसी भी की स्ट्रोक को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर उसको एज अ ट्रू या फॉल्स वैल्यू के तरीके कंसीडर करेगा और उसी के बाद वो अपने आउटपुट को डिसाइड करता है. Let's take one more example. Nowadays you might have seen that we have digital boards. Fine, we have digital lights, we have remote controlled LED lights. Fine, we have remote controlled shutters, doors and everything. उन सब में भाई क्या होता है, एक स्विच बोर्ड होता है, ठीक है, हमारे पास एक या फिर एक रिमोट कंट्रोल होता है, और जैसे ही हम लोग अपने रिमोट से कोई भी की को प्रेस करते हैं, लाइट्स ऑन हो जाती हैं, फैंस ऑन हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं. फाइन, जब हम लोग एक स्विच की बात करते हैं तो भाई स्विच एक बड़े ही सिंपल से कंसेप्ट पे वर्क करता है ऑन या ऑफ के. ठीक है, अगर मुझे किसी भी स्विच को ऑन करना है, यानी कि मुझे वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की स्टेट बना देनी है 1, ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई रिमोट कंट्रोल सिस्टम होगा तो मैं उससे क्या करूँगा, मैं उससे बाइनरी वैल्यू 1 को पास ऑन कर दूंगा अपने सर्किट बोर्ड में. जैसे सर्किट बोर्ड समझ जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली स्विच को ऑन कर देगा. और अगर मैंने यहाँ पे स्विच को ऑफ करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी बाइनरी वैल्यू को सेट कर दूंगा ऑफ यानी कि 0 पर, और ऑटोमेटिकली स्विच में से करंट फ्लो करना वहाँ पे बंद कर जाएगा. फाइन, सो इन दिस कंसेप्ट नाउअडेज ऑल दीज मशीन्स आर जनरली बिल्ट. In some cases we have to perform some operations in a specific manner. For example, suppose करो भाई मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि लेट्स से हम लोगों के रूम में एक स्पेशल टाइप का लाइट लगा हुआ था, जिसको ऑन करने के लिए हम लोग को दो स्विचेस को एक साथ प्रेस करना पड़ता है, एक स्विच 1 है, एक स्विच 2 है. या फिर बात करते हैं किसी बैंक की जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक सेफ है. फाइन, वहाँ पर मैंने कह दिया वहाँ पर एक डिजिटल सेफ है किसी बैंक में जिसमें पैसे रखे जाते हैं. फाइन, अब उस डिजिटल सेफ को ओपन करने के लिए 2 पासवर्ड्स चाहिए. लेट्स से डिजिटल सेफ को ओपन करने के लिए वी नीड 2 पासवर्ड्स. तो यानी कि अगर मेरा फर्स्ट पासवर्ड और सेकंड पासवर्ड अगर दोनों के दोनों पासवर्ड्स ट्रू होंगे, उसी केस में सेफ ओपन होगा, अदरवाइज सेफ ओपन नहीं होगा. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे दोनों के दोनों पासवर्ड्स को एक साथ चेक करना है. ये हो गया हमारा एक कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या भाई हो सकता है मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर फर्स्ट वाला पासवर्ड ट्रू हो या फिर सेकंड वाला पासवर्ड ट्रू हो या दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो. फाइन, इट मीन्स एनी ऑफ दीज वाली अगर हम लोग कंडीशन ले रहे हैं, उस कंडीशन मुझे सेफ ओपन करनी है. फाइन, तो ये हो गया एक कंडीशन. ये सपोज करो हम लोग यूज़र को ट्रैक कर रहे हैं, मैंने अपने घर में एक स्पेशल स्विच लगा रखा है, वो स्विच थोड़ा सा उल्टा काम करता है. अगर मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो वो क्या कर रहा है, वो लाइट को ऑफ कर देता है. अगर मैं स्विच को ऑफ करता हूँ तो वो क्या करता है, वो लाइट को ऑन कर देता है. अगर मुझे कुछ इस टाइप के उल्टे पुल्टे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग वहाँ पे बूलियन अलजेब्रा के ही कंसेप्ट्स का यूज़ करते हैं. Now let's discuss about this term logic gates. So first question is, what are these logic gates? Well,
A logic gate is an electronic circuit. The most important thing is that logic gates क्या होते हैं, ये electronic circuits होते हैं which operates one or more input signals. Fine. So what they generally do, they use or they, you can say, handle or manage the input values or input signals to produce a standard output signal. What are these logic gates? So these logic gates are circuits. In these circuits some values will be given. Fine. Some values will be given. यहाँ पे value input होगी and in output section, in the result you will get a proper output. Fine. It means it will work as a circuit board inside which all your inputs will be given and it will produce an output depending on your input values. Fine. These logic gates are the building blocks of the circuits in a computer system. Fine. These logic gates generally work as a building block of a circuit inside our computer systems. Well, we have to discuss 6 types of logic gate: AND, OR, NOT, NAND, NOR and XOR. फटाफट से एक बार जरा समझते हैं भाई. अगर हम लोग AND की बात करें तो ये AND को हिंदी में हम लोग बोलते हैं OR. इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग किसी भी दो कंडीशंस को एट अ टाइम ट्रू करने की बात कर रहे होते हैं. मैंने बोला अगर राम और श्याम, फाइन, सपोज वी हैव 2 स्टूडेंट्स राम और श्याम, तो मैंने कहा राम और श्याम दोनों लोग खड़े हो जाओ. इसका मतलब क्या है, मैंने बोला इंग्लिश में मैंने हिंदी में बोला राम और श्याम आप दोनों खड़े हो जाएंगे. इट मीन्स राम एंड श्याम बोथ ऑफ यू स्टैंड अप. इट मीन्स राम एंड श्याम दे बोथ हैव टू स्टैंड. मैंने किसी एक के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करी है. फाइन. तो जो AND गेट क्या करता है, AND गेट दोनों वैल्यूज को चेक करता है एक साथ. मतलब यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यूज या तो होनी चाहिए ट्रू, तभी रिजल्ट मेरा आएगा ट्रू. Then next gate is OR gate. Now in this OR gate, if any of the condition is true, for example I am saying Ram और श्याम स्टैंड अप, तो मैंने बोला राम और श्याम स्टैंड अप, मतलब राम या श्याम दोनों में से किसी एक को मैंने खड़े होने को यहाँ पर बोला. इट मीन्स एक बच्चा खड़ा होगा, हो सकता है दूसरा वाला यहाँ पे बैठा हो. Then next is termed as नॉट गेट. नॉट का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा मना कर देना. फाइन. इफ आई एम सेइंग नॉट स्टैंड, नॉट स्टैंड का मतलब क्या होगा, तुम्हें खड़े नहीं होना है, मतलब तुम वहाँ पे क्या करोगे जी, बैठ जाओगे आराम से. इफ आई एम सेइंग नॉट वन, इफ आई एम सेइंग नॉट वन, इट मीन्स वहाँ पे वैल्यू 1 नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, वैल्यू 0 बन जाएगी. फाइन. द नेक्स्ट इज टर्म्ड एज NAND गेट. वेल दिस NAND इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स, दैट इज that is not plus AND. Fine. This NAND is a combination of 2 logic gates, not and AND. Might be अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, next slide में समझ में आएगा. Then next is NOR. NOR is a combination of 2 logic gates, that is NOT plus OR. And then at last is XOR. XOR is a special type of gate. इसको हम लोग क्लास में समझेंगे. अब चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले एक important नोटिस है सबके लिए. माइट बी इस चैप्टर के कुछ कंसेप्ट प्रैक्टिकली या तुम लोगों को लॉजिकली थोड़े से समझ में नहीं आए, बट आई डू सजेस्ट यू वन थिंग, इट्स अ प्रॉपर थ्योरी पार्ट फॉर यू नाउ. फाइन. इट्स अ प्रॉपर थ्योरी चैप्टर और थ्योरी पार्ट फॉर यू नाउ, सो यू हैव टू ट्राई टू लर्न ऑल दीज कंसेप्ट्स एज मच एज यू कैन. फाइन. सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चैप्टर, एवरी पेज प्रॉपरली, लाइक यू हैव टू राइट दिस वन ऑल्सो. तो या तो उसको नोट डाउन कर लो साथ में, या फिर इसको पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. फाइन. Then next is AND gate. It is the first category of gate. Now AND का मतलब क्या होता है, मैंने जस्ट अभी बताया था कि दोनों चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ at a time. Fine. So it is a representation of the logical multiplication operation. याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ बूलियन एल्जेब्रा की, अगर मैं बात कर रहा हूँ बूलियन एल्जेब्रा की, तो बूलियन एल्जेब्रा में AND का काम होता है मल्टीप्लिकेशन का. और मल्टीप्लिकेशन का तो बड़ा ही सिंपल से रूल्स हैं, अभी देखो आगे हम लोग समझेंगे सारे के सारे. फाइन. It is an electronic circuit which generates an output signal of 1 only if all the inputs are 1. Fine. बड़ी सिंपल सी बात है, इसको आज इट इज वर्ड टू वर्ड लर्न करना है. एक मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, वर्ड टू वर्ड लर्न करना है. लर्न करने के लिए बहुत ईजी चैप्टर है ये. फाइन. अब ये AND गेट क्या कहता है, AND गेट बड़ी ही सिंपल सी प्यारी सी बात कहता है हम लोगों से. ये AND गेट कहता है कि भाई ये जो AND गेट होगा ये हम लोगों को वैल्यू यानी कि आउटपुट 1 देगा अगर सारे के सारे इनपुट्स जो है वहाँ पे वो 1 होंगे. फाइन. इफ ऑल द इनपुट्स आर 1, इन दैट केस योर आउटपुट विल बी 1, एल्स इट विल बी 0. एल्स वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 0. चला समझते हैं भाई ऐसा क्यों है. जैसे कि मैंने बताया था भाई ये जो AND गेट है ये मल्टीप्लिकेशन वाला गेट है. तो चलो भाई आते हैं, वर्क करते हैं यहाँ पे. फाइन. अब मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ और अगर मैं बात करूँ बाइनरी नंबर्स की, बिकॉज अभी जो हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं ना, गेट्स पढ़ रहे हैं, सब बाइनरी नंबर्स पर वर्क करते हैं. मैंने बोला मेरे पास 2 नंबर्स थे, एक था A एक था B, और मैं इसका रिजल्ट स्टोर कर रहा हूँ F में, और हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो मल्टीप्लिकेशन के हम लोग AND का सिंबल यूज़ करेंगे जो कि होता है ये बड़ा सा मोटा सा डॉट.
दोनों के बीच में लगाते हैं हम लोग। फाइन, अब अगर मैं बात करूं ए और बी की वैल्यूज़ की, तो ज़रा सोच के बताओ भाई, अगर मैं 0 और 1 के फॉर्म में वैल्यूज़ लिखूंगा तो पॉसिबल वैल्यूज़ वहाँ पे क्या क्या आएंगी। चलो देखते हैं। पहली चीज़, या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा। दूसरी चीज़, या तो ए 0 होगा बी 1 होगा, या फिर हो सकता है ए 1 होगा बी 0 होगा, या फिर हो सकता है ए 1 होगा और बी भी 1 होगा। तो ये हम लोगों की कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, और हो सकता है यही सिर्फ 4 के 4 पॉसिबल केसेस यहाँ पे बने। वेल, हो सकता है क्या सिर्फ यही 4 पॉसिबल केसेस यहाँ पे बनते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैंने 0 में से 0 को मल्टीप्लाई करा, रिजल्ट कितना यहाँ पे आएगा, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 0। सेकेंड इज क्या है, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 में फिर से क्या रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। 1 इंटू 0 में रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, 0, और 1 इंटू 1 में रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो ये जो मैंने अभी जस्ट चीज़ यहाँ पर ड्रॉ करी है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रुथ टेबल। दिस इज टर्म्ड एज ट्रुथ टेबल ऑफ आर लॉजिक गेट्स, और ये ट्रुथ टेबल बताती है कि इनपुट्स के बेसिस पे हमारा लॉजिक गेट काम किस तरह से करेगा। फाइन, अब अगर मैं बात करूँ इसके डायग्राम की, सर्किट डायग्राम की, तो भाई ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ मैंने ड्रॉ कर रखी है, एक मोटा सा डी, जिसमें यहाँ से 2 इनपुट्स जा रहे हैं ए और बी, और यहाँ से एक आउटपुट आ रहा है एफ। इट इज़ द ग्राफिकल फंक्शन। ये ड्रॉ करना है तुम लोगों को नोटबुक में अपने एज इट इज़। ये जो पार्ट इधर बना हुआ है, इसको तुम लोगों को एज इट इज़ नोटबुक में ड्रॉ करना है। हो सकता है क्वेश्चन में तुमको एक ऐसी इमेज मिले बनी हुई, एंड देन दे विल आस्क यू फॉर द लॉजिक गेट कि इसका नाम क्या है। या फिर हो सकता है ऐसा करें कुछ हम लोग, देखो यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी 1, यहाँ पे लिखा होगा 1, और यहाँ पे एक बना होगा क्वेश्चन मार्क, एंड देन दे विल आस्क कि विच वैल्यू विल कम ओवर दिस साइड। थोड़ा सा सोचो, आउटपुट यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, आउटपुट 1 हो रहा है, ठीक है। तो दोनों इनपुट बिट यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, 1 ही होनी चाहिए थी। इट मीन्स यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 1। बड़ा ही सिंपल सा काम है। वेल, एक और जरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हम लोगों के इनपुट्स यहाँ से मैं दे रहा हूँ, मैंने बोला मेरा फर्स्ट इनपुट 0 था, दूसरा इनपुट 1 था। तो सोच के बताओ भाई मेरा आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा। जरा इस वाली टेबल का यूज़ करते हैं हम लोग। मेरा पहला इनपुट 0, दूसरा इनपुट 1, यानी कि ये वाली कंडीशन, तो वहाँ पे आउटपुट मेरा आ जाएगा 0। फाइन, तो इस तरह से ये लॉजिक गेट्स जनरली वर्क करते हैं। एक और सिनेरियो की बात करते हैं भाई। सपोज करो तुम एक ऐसा सर्किट बोर्ड डिज़ाइन कर रहे थे जहाँ पे अगर एक स्विच ऑन है, दूसरा स्विच ऑफ है, उस कंडीशन में लाइट नहीं जलनी चाहिए। अगर दोनों स्विचेस ऑन है, उसी कंडीशन में लाइट जलनी चाहिए। फाइन, तो उस कंडीशन में अगर दोनों स्विचेस ऑन होंगे तो उनकी स्टेट 1 आएगी, और वहाँ पे तभी लाइट लिट करेगी। अब बात करते हैं इसके एल्जेब्रिक फंक्शन की, कि इसको तुम लोग लिखोगे कैसे। तो नोटबुक में लिखने का तरीका ही बड़ा इसका सिंपल सा है। वी हैव टू राइट f इज इक्वल्स टू a डॉट b, और यू कैन डायरेक्टली राइट f इज इक्वल्स टू a b विदाउट एनी डॉट और स्पेस। फाइन, सो नाउ यू हैव टू ड्रॉ दिस होल इन योर नोटबुक। क्या करोगे, पहले हेडिंग डालना, डेफिनेशन को नोट डाउन करना, उसके बाद हेडिंग डाल करके ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना, हेडिंग डाल करके ये वाली टर्म्स को नोट करना, और इसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन पे ये हेडिंग डाल करके ये टेबल ड्रॉ कर लेना। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट गेट। चलो बात करते हैं सेकंड गेट की, दैट इज OR गेट। वेल, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल एडिशन। फाइन, दिस OR रिप्रेजेंट्स द एडिशन। इट मीन्स इसका जो सिंबल होगा वो होगा ये प्लस वाला सिंबल। फाइन, it is an electronic circuit which generates an output signal 1 if any of the input signal is 1। बड़ी सिंपल सी मैंने बात बोली यहाँ पे मैंने बोला कि अगर any value is 1, अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो वहाँ पर जो आउटपुट जनरेट होगा वो भी ट्रू होगा, यानी वो भी 1 होगा। मतलब दो में से कोई भी वैल्यू 1 तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। मतलब मैंने सिंपल सी बात बोली, मैंने बोला कि मैंने एक रिवीजन टेस्ट लिया जिसमें से अगर तुमने कोई भी एक टेस्ट पास कर लिया, मतलब तुम्हें मार्क्स वहाँ पे पूरे पूरे मिल जाएंगे। Fine, now let's talk about the graphical function of this. So for drawing this, we use this symbol. Fine, यहाँ से आउटपुट बिट आएगी और यहाँ से इनपुट बिट्स अंदर जाएंगी। फाइन, इसको डी की तरीके बिल्कुल मत बनाना, ये डी बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का सिंबल है ये। कुछ ऐसे करा, कुछ ऐसे करा, जैसे तोता होता है, तोते की जो वो होती है, उसकी जो बीक होती है ना, आई थिंक वही कहते हैं, उसी की तरीके कुछ होती है। फाइन, नाउ ओवर दिस साइड यू कैन सी द algebraic function. It is written as a plus b and it is a truth table. अब ट्रुथ टेबल को फटाफट से समझते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या बना हुआ है। वेल, इट इज रिटन a प्लस b और रिजल्ट दे रही है f। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 प्लस 0 को ऐड करेंगे रिजल्ट आएगा 0, 0 प्लस 1 को ऐड करेंगे रिजल्ट आएगा 1। अब तुम लोग सोचो कि यहाँ पे वैल्यू 1 क्यों आई है। वैल्यू यहाँ पे 1 इसलिए आई है बिकॉज यहाँ पे जरा इस वाली लाइन को रीड करो, इट जनरेट्स द आउटपुट सिग्नल 1 इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 1। ये किसी भी वैल्यू पे जहाँ पे वैल्यू 1 आ रही होगी आउटपुट 1 दे देगा।
ये बाइनरी एडिशन नहीं है ना, रखना, इट इज़ नॉट बाइनरी एडिशन, इट इज़ नॉट बाइनरी एडिशन, ये बाइनरी एडिशन नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बाइनरी एडिशन नहीं है, ये एक लॉजिक है। फाइन, यहाँ पे अगर दोनों वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू 1 है तो हमारा रिजल्ट 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक वैल्यू 1 है, यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यूज 1 है, तो यानी कि इन तीनों की तीनों कंडीशंस में हमारा आउटपुट यहाँ पे ट्रू आएगा। गॉट दिस? नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट गेट, दैट इज नॉट गेट। अब नॉट का तो मतलब ही हो गया मना करना, इसको जो भी काम दोगे क्या कर देगा, मना कर देगा। फाइन, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। फाइन, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। तुम उसको बोलोगे हाँ तो ये उसको सुनाई देगा नहीं, लाइक आई एम सेइंग जस्ट बी क्वाइट, इट मींस यू हैव टू शाउट। फाइन, सो इट विल रिवर्स और यू कैन से इनवर्स ऑल द इनपुट्स। इट जनरेट्स एन आउटपुट सिग्नल विच इज द रिवर्स ऑफ द इनपुट सिग्नल। ये क्या करेगा, ये हमारे सारे के सारे इनपुट्स को रिवर्स कर देगा। इट मीन्स यू आर टाइपिंग 0 बट इसको दिखाई देगा 1, यू आर टाइपिंग 1 इसको दिखाई देगा 0। ये क्या करेगा, सारी वैल्यूज का उल्टा करता चला जाएगा। Fine. A NOT gate is also known as inverter because it inverts the value. It is also known as inverter. इसका दूसरा नाम याद रखो, it is also known as inverter. Now let's have a look at this graphical function. इस graphical function में एक बहुत ही खास चीज़ है जिस पर हम लोग को फोकस करना है। इसका जो graphical function है वो एक नॉर्मल सा ट्राइंगल होता है और यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल होता है। अभी जो सर्कल दिख रहा है तुमको, यही सर्कल नॉट का सर्कल है, याद रखो, यही सर्कल नॉट का सर्कल है। इस ट्राइंगल की कोई वैल्यू नहीं है भैया, यहाँ पे ये सर्कल नॉट का सर्कल है। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे, इट ओनली एक्सेप्ट्स 1 इनपुट, इट ओनली एक्सेप्ट्स 1 इनपुट, ये सिर्फ एक इनपुट को लेता है। फाइन, मतलब यहाँ से एक इनपुट जाएगा और बदले में एक आउटपुट आएगा, और इसको वैल्यू को पलटने का काम कौन कर रहा है, ये जो छोटा सा हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ करा हुआ है, यही सर्कल सारी वैल्यूज को उल्टा पुल्टा यहाँ पे कर देता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है 1 तो आउटपुट आएगा 0, मैंने इनपुट दिया था 0 तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 1। फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रुथ टेबल यू कैन सी इजिली। एंड इफ यू हैव टू राइट दिस एल्जेब्रिकली, अगर इसको एल्जेब्रिकली लिखना है तो कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे f इज इक्वल्स टू a के ऊपर एक बार, या फिर कॉम्प्लीमेंट का सिंबल, कॉम्प्लीमेंट के सिंबल में हम लोग ऐसे करके छोटा सा एपोस्ट्रॉफ लगाते हैं, सॉरी ये a है। फाइन, a के ऊपर एपोस्ट्रॉफ, तो हम लोग इस तरह से मैथमेटिकली इसको शो कर सकते हैं। तो भाई फटाफट से इन सारी चीज़ों को लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट इज NAND गेट। अब भाई मैंने बताया था NAND गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गेट्स, दैट इज नॉट गेट एंड AND गेट। फाइन, और नॉट गेट को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट गेट। फाइन, सो दैट्स व्हाई इट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज कॉम्प्लीमेंटेड AND गेट, इट इज टर्म्ड एज कॉम्प्लीमेंटेड AND गेट, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेड AND गेट। द आउटपुट ऑफ NAND गेट विल बी 1 इफ एनी वन ऑफ द इनपुट्स इज 0। बड़ी ही उल्टी कंडीशन में, बहुत ध्यान से समझना बात को, वी आर सेइंग इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट विल बी 1। फाइन, याद रखना अगर दो में से कोई भी वैल्यू 0 है तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके तुम्हारा आउटपुट यहाँ पे 1 बन जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट द ट्रुथ टेबल। भाई 0 और 0 को मैंने NAND गेट से पास करा, NAND गेट का मतलब ये वाला सिंबल है। अब जरा सिंबल को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, तो मैं तुमको ड्रॉ करके बताता हूँ NAND गेट आखिर ये बनता कैसे है। भाई जैसे कि मैंने बताया था, जो NAND है वो एक मर्जर है नॉट और AND का, तो ये हो गया मेरा AND गेट। जो मेरी वैल्यूज जाएंगी वो 2 वैल्यूज इसमें जाएंगी, बिकॉज ये तो 2 वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है, A और B। अब क्या करा भाई, मैंने इसी के जस्ट आगे जो उसका आउटपुट आ रहा था, मैंने उसमें कैसे करके नॉट गेट लगा दिया। ठीक है, तो अब इसने गड़बड़ कर दी। जैसे ही मैंने नॉट गेट लगा दिया, नॉट गेट क्या करेगा, मेरी सारी की सारी वैल्यूज़ को रिवर्स कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फर्स्ट वैल्यू पेयर था, फर्स्ट को यहाँ पे लिखते हैं 0 और 0, जैसे ही 0 0 गया यहाँ पे आउटपुट आया 0, लेकिन रिजल्ट यहाँ पे जनरेट हो गया 1 का, बिकॉज यहाँ पे लगा हुआ था नॉट गेट, जो क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है वैल्यूज़ को। सेकेंड वैल्यू पेयर मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा 0 और 1। फाइन, जिसका जो आउटपुट था वो यहाँ पे जनरेट हुआ मेरा आकर के 0 अगेन, लेकिन इसने फिर से क्या करा, इसका आउटपुट जनरेट करा लेने के लिए 1। फाइन, फिर मैंने थर्ड वैल्यू पेयर यहाँ से इंसर्ट करे 1 और 0, अगेन सेम थिंग हैपेंड, यहाँ पे भाई आउटपुट आया 0, लेकिन इसने क्या आउटपुट शो करा, इसने आउटपुट शो करा 1, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नॉट गेट है सारी वैल्यूज को इन्वर्ट कर देगा। लास्ट मैंने एंटर करा 1 and 1, तो यहाँ पे आउटपुट आया 1, लेकिन इसने फिर उल्टा कर दिया भाई, इसने 1 को शो कर दिया एज अ 0। इस तरह से क्या करता है, हमारी सारी की सारी वैल्यूज को 0 कर देता है। लेकिन इतना जो बड़ा सिंपल तुम लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि काम करो, इसी एंड के आगे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये जो नॉट का 0 है छोटा सा सर्कल, इसको यहाँ चिपका दो ऐसे करके यूँ। फाइन, अब यहाँ से तुम्हारी दोनों इनपुट वैल्यूज आएंगी
और यहाँ से तुम्हारी आउटपुट वैल्यू बाहर चली जाएगी. It is A and B as input and F as the output. Fine. So you have to draw the symbol for the symbol of NAND gate. Let's have a look at this. Fine. And for representing this NAND gate graphically, what we have to do, जो हम लोग का AND का mathematical logic था, like ये वाला, इसी के ऊपर एक बार लगा देना हम लोगों को, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A dot B with a apostrophe. Fine. तो इस तरह से हम लोग इसको algebraically रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और बात करते हैं चलो ट्रुथ टेबल की. तो वही देखो, वो सिंपल सा काम है. 0 0 पे वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. बिकॉज इसका सिंपल सा कहना है, इसका कहना है कि अगर एक भी इनपुट 0 है तो वहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट वहाँ पे 1 आएगा. फाइन. देखो यहाँ पे दोनों इनपुट 0 है, आउटपुट 1 आया. यहाँ पे इनपुट 0 है, आउटपुट 1 आया. यहाँ पे इनपुट 0 तो यहाँ पे आउटपुट 1 आया है. देन नेक्स्ट इज नॉर गेट. नॉर गेट क्या हो गया, इट इज नॉर. फाइन. नॉर का मतलब हो गया और प्लस नॉट. सिंबल को समझते हैं जरा. ये था हमारा और गेट, इसमें मैंने ऐड कर दिया नॉट गेट. जैसे ही मैंने ऐड करा तो भाई ये कुछ दिखने में ऐसा लगा पहले तो. लेकिन अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो दिखने में फिर ये कुछ ऐसा लगेगा. फाइन. और इसका भी लॉजिक बड़ा ही सिंपल सा था. मैंने यहाँ पे वैल्यूज एंटर करी 0 0. फाइन. अब ये करता क्या था भाई, ये वैल्यूज को ऐड कर रहा था. इसका कहना था कि अगर कोई भी वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा. दोनों वैल्यू 0 आई तो यहाँ पे रिजल्ट आया 0, लेकिन इसने उसको कर दिया 1. फिर मैंने एंटर करा 0 एंड 1. 0 एंड 1 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दो में से कोई भी एक वैल्यू 1 है, आउटपुट 1 आना चाहिए था, लेकिन इसने आउटपुट कर दिया 0. सेम चीज़ इसने करी नेक्स्ट कंडीशन में, आउटपुट 0. और सेम चीज़ इसने करी कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन में, आउटपुट 0. Fine. It is the reverse of your OR gate. It is termed as complemented OR gate. The output of NOR gate will be 0 if any of the input is 1. याद रखो, अगर कोई भी इनपुट 1 है तो वहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा, अदरवाइज 1 आएगा. Now let's move to our last gate, that is XOR. Fine. ये XOR का सिंबल देखो मैंने यहाँ पे स्पेशली ड्रॉ करके रखा है. याद रखो, XOR का सिंबल बड़ा सिंपल सा है. ऐसे करके सर्कल बनाना है, उसके अंदर प्लस बना देना है बड़ा सा. फाइन. ये जो सिंबल बना हुआ है, इट इज द सिंबल ऑफ XOR. याद रखना, इट इज द सिंबल ऑफ XOR. ये एक अलजेब्रिक सिंबल है XOR का. इस वाले फंक्शन में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इसका. फाइन. और अगर ग्राफिकली बात करें, ग्राफिकली ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है. अब चलो पढ़ते हैं होता क्या है ये. इट स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव और. फाइन. ये जो XOR होता है, XOR का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और. ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बस इसको लर्न कर लेना है. फाइन. The output of XOR gate is 1 if both the inputs are different. बड़ी सिंपल सी बात बोली मैंने यहाँ पे बोला है if both input are different, in that case output will be 1. Fine. अगर दोनों के दोनों इनपुट्स अलग अलग हैं, अब देखो इनपुट्स अलग अलग कैसे होंगे, या तो 0 या 1 होगा, या फिर 1 या 0 होगा, तो उस कंडीशन में तुम्हारा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 1. लेकिन अगर दोनों ऐसे कुछ इस तरीके के लाइक 0 0 थे और 1 1 थे, तो यहाँ पर आउटपुट जो होगा वो हम लोगों का 0 आएगा. फाइन. अब बात कर रहे थे सिंबल की, तो उसका सिंबल बनाना बहुत ही आसान है. जो हम लोग अपना और का सिंबल बना रहे थे कुछ इस तरीके का, अब एक्सक्लूसिव है तो यहाँ पे बस एक लेयर और ऐड हो जाएगी बस. अगर नीट डायग्राम देखना तो हैव अ लुक एट दिस डायग्राम. फाइन. सो इट वाज ऑल अबाउट आवर लॉजिकल गेट्स. बड़े ही सिंपल से थे, इनको समझना बहुत ही आसान काम है, बिकॉज अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है. सो यू जस्ट हैव टू नोट डाउन ऑल दीज फ्यू डेफिनेशंस एंड टर्म्स इन योर नोटबुक, and you may learn this topic in class 11th and class 12th if you will opt computers, in that case only. So till then, stay safe, stay healthy and keep learning. At least revise the notes of this chapter properly twice or thrice. बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एंड आई थिंक सबको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आएंगी. अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट डाउन ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. I will try my best to cover all your doubts and queries in the next coming videos. Till then, keep learning. So thank you students for watching this video. Over this side you will get the playlist of your class, and over this side you will get the previous video. और भाई सेंटर में बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, अब वो मेरे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन गई है, तुम लोग भी फोकस करो भाई. यहाँ पर एक बटन आता है, सब्सक्राइब का बटन आता है. अब तक का मैंने तुम लोगों से नहीं बोला था
But now I do request you all to please subscribe this channel. Thank you students and have a nice day.